रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम है ड्रॉबैक्स और फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। Toward the end of 19th and start of 20th century, physicists had started believing that almost all natural or daily occurring phenomena can be explained by using classical mechanics or classical physics, and the main task of physics is over. Even when Max Planck entered into physics in 1900, physicists advised him not to study physics because all problems related to physics has been solved. याद रखिए 1900 सेंचुरी के एंड में और 20 सेंचुरी के स्टार्ट में फिजिस्ट का ये बिलीव था कि यूनिवर्स में ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं है, ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन ना हो सकता हो। मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स और फिज़िक्स जो है अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचा है और फिज़िक्स में न्यू काम करना जो है वो इम्पॉसिबल है। इवन जब 1900 सदी में मैक्स प्लांक ने फिज़िक्स में एंट्री किया तो उसके जो फिज़िक्स दोस्त थे उन्होंने उनको एडवाइस की कि फ़िज़िक्स अपनी पीक पर पहुंचा है और फिज़िक्स में मज़ीद न्यू काम करना जो है वो इम्पॉसिबल है। बट इन सेम टाइम some phenomena observed by physicists which cannot be explained by classical mechanics, and such phenomena cause a new physics which is called quantum mechanics. इसी दौरान ऐसे कुछ फिनोमेना साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की जो क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन ना हो सके और साइंटिस्टों ने एक न्यू फिज़िक्स को डेवलप किया ताकि उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करे और उस न्यू फिज़िक्स को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। वो फिनोमेना और इवेंट हमारे पास क्या है उसको हम अगले वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स क्या होता है। क्लासिकल फिज़िक्स सिंपल मीन्स द यूनियन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल फिज़िक्स। Classical mechanics means the study of Newtonian mechanics, Lagrangian mechanics, and Hamilton mechanics. While electricity and magnetism means the study of stationary or moving charges or Maxwell equation. And thermodynamics means the study of Boyle law, Charles law, and Ideal equation is called thermodynamics. So classical physics failed to explain certain experimental phenomena or events which led to the development of new physics which is called quantum mechanics. Black body, photoelectric effect, Compton effect, atomic stability, alpha emission, hydrogen spectra, nuclear stability, and heat capacity. All these phenomena cannot be explained by classical mechanics because classical mechanics is the study of macroscopic particle, while all these phenomena occur at microscopic level or atomic level. So therefore classical physics failed to explain these phenomena. Now to explain these microscopic phenomena or atomic scale phenomena, we need a new physics which is called quantum mechanics. So quantum mechanics simply means the study of microscopic object is called quantum mechanics. Now we discuss all these phenomena one by one, that how classical mechanics fail to explain these phenomena. The black body radiation. Black body is a hypothetical physical body that absorbs all incident electromagnetic radiation. The radiation emitted by black body to the environment is called black body radiation. ब्लैक बॉडी क्या होता है? लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जो है हम वेरियस वेव को इंसिडेंट करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट इस सारे वेव को एब्जॉर्ब करे तो इसकी टेम्परेचर जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी और फिर यही ऑब्जेक्ट जो है वेव्स को दोबारा एमिट करेगा। अब अगर इस ऑब्जेक्ट ने जितनी भी वेव्स एब्जॉर्ब किया है बिल्कुल वही वेव ये एमिट करे तो इस ऑब्जेक्ट को फिर हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास यूनिवर्स में वो हमारे पास है सन। सन की जो सरफेस टेम्परेचर होती है वो हमारे पास बराबर होती है
6000 केल्विन और ये सन जो है ऑल टाइप फ्रीक्वेंसी वाले वेव को एमिट करता है. सो सन इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी. Now, energy density of black body is defined as the energy content per unit volume per unit frequency of black body at temperature T is called energy density. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है और इस ब्लैक बॉडी से वेरियस रेडिएशन जो है वो एमिट होते हैं. करेक्ट. अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाला वेव ले लूँ तो इस ब्लैक बॉडी के सराउंडिंग हर तरफ से ये वाली वेव जो है मिसाल के तौर पर इसकी फ्रिक्वेंसी है 10^14 हर्ट्ज. तो इस ब्लैक बॉडी के अराउंड जो है हर तरफ से 10^14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से एमिट होती है. अब अगर इस सारे वेव्स की मैं एनर्जी ले लूँ और उसको मैं इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिवाइड करूँ और इस 10^14 हर्ट्ज से डिवाइड करूँ तो इस एनर्जी की अमाउंट को बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी. अब अगर इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी वेव्स एमिट होते हैं उसके वेरियस फ्रीक्वेंसी हमारे पास पॉसिबल है. अगर वेरियस फ्रीक्वेंसी का हम एनर्जी डेंसिटी एलॉन्ग वाई एक्सेस ले ले और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हम एलॉन्ग एक्स एक्सेस ले ले तो हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटली इस किस्म की ग्राफ आएगी. मींस अगर इस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर हमारे पास हो 1000 केल्विन तो इसकी जो एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी ग्राफ एक्सपेरिमेंटली है वो हमारे पास ये होगा. अब अगर इस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर में इंक्रीज करूँ 1500 केल्विन करूँ तो इसकी एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ये होगा. सिमिलरली अगर इसके टेम्परेचर में 2000 केल्विन रख दूं तो इसकी जो एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा हमारे पास ये होगा. अब याद रखें ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ग्राफ है. तो फिजिक्स में ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं है जिसका मैथमेटिकल इक्वेशन ना हो. तो याद रखें अब साइंटिस्ट के लिए ये एक चैलेंज था कि इस एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन को डेवलप करें. तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को डेवलप करने के लिए डिफरेंट लॉज और डिफरेंट इक्वेशन जो है साइंटिस्टों ने प्रेजेंट की. बाज़ इक्वेशन इस तरह थे कि वो इस ग्राफ को लो फ्रीक्वेंसी पर एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्सप्लेन न कर सका. बाज़ लॉ ऐसे थे कि उस ग्राफ को हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पर एक्सप्लेन न कर सका. याद रखिए अब हम वो इक्वेशन पढ़ते हैं जो इस ग्राफ के एक्सप्लेनेशन के लिए जो है साइंटिस्टों ने यूज की है. सो द फर्स्ट वन वीन्स लॉ. देयर वर वेरियस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द कंटिन्यूस नेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. In 1894, Wien derived a formula on the base of that light is a wave with nature and its energy density equation equal to this one. याद रखिए 1894 में इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वीन्स ने अपना इक्वेशन कंस्ट्रक्ट किया और इक्वेशन हमारे पास ये था. और इस इक्वेशन के जो एजम्पशन थे वो ये थे कि लाइट का जो क्लासिकल नेचर है वो हमारे पास वेव है. तो इस एजम्पशन के बेस पर उन्होंने इस इक्वेशन को डेवलप किया. लेकिन ये जो इक्वेशन था वीन का ये एट हाई फ्रीक्वेंसी पर जो है दिस वाइट लाइन शो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. दिस इक्वेशन coincide to experimental graph at high frequency, but for low frequency as frequency decrease from right to left, then this equation deviate from this graph. So it means the Wien's law is valid for high frequency, but this equation fail for low frequency. So इसका मतलब ये है कि वीन का जो लॉ है जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को एक्सप्लेन न कर सका और उसकी जो एजम्पशन थी वो क्या थी. उसकी एजम्पशन थी द बिहेवियर ऑफ लाइट एज ए वेव. सो यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिकल इक्वेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स का ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन फेल हो जाता है कि इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें. रेले एंड जीन्स लॉ. लेटर रेले एंड जीन्स अटेम्प्ट द थ्योरेटिकल मॉडलिंग ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन on the basis of classical radiation theory and principle of equipartition of energy derive this equation. This is the equation of Rayleigh and Jeans. This equation coincide to the experimental graph for low frequency but fail for high frequency. And similarly, this one show the Wien's law which agree to the experimental result for high frequency but fail for low frequency.
अब याद रखिए हमारे पास जो दोनों लॉ थी, हमारे पास क्लासिकल लॉ थी कि इन दोनों का एजम्पशन ये था कि लाइट का जो नेचर है हमारे पास वेव है। सो इन दिस केस पर ब्लैक बॉडी अगर लाइट का नेचर वेव है तो फिर क्लासिकली ये होना चाहिए था कि दोनों ग्राफ जो है इस पर ओवरलैप करें, लेकिन ये दोनों ग्राफ जो है सम रीजन में एक्सपेरिमेंटल रीजन के साथ कंसाइड करता है, मैच करता है, लेकिन सम रीजन में ये फेल होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्लासिकली जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसका जो नेचर है वो वेव जैसा नहीं है। अगर वो वेव जैसा होता तो उन दोनों की इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच होना था। मैक्स प्लांक्स लॉ, इससे पहले हमने क्लासिकल लॉज रेले जीन्स लॉ और वीन लॉ को डिस्कस किया और हमने ये कंक्लूड किया था कि दोनों लॉ जो थे हमारे पास क्लासिकल है नेचर में, क्योंकि इन दोनों का एजम्पशन जो है वो इस बेस पर था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव है, और ये दोनों इक्वेशन फेल होते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ और ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन कर सके। तो 1900 सदी में मैक्स प्लांक ने जो है लाइट के बारे में अपना व्यूज़ पेश किया कि लाइट का जो नेचर है वो क्वांटाइज है या डिस्क्रीट है, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है जो लाइट इमिट होती है वो स्पेसिफिक अमाउंट में होती है और उसको उसने नाम दिया क्वांटा। और इस एजम्पशन के बेस पर मैक्स प्लांक ने इक्वेशन डिराइव किया, करेक्ट। और ये जो इक्वेशन था वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ एग्री करता था। इसको हम शो कर सकते हैं बाय दिस येलो सर्कल शो मैक्स प्लांक इक्वेशन ग्राफ एंड दिस बोल्ड लाइन शो द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ फॉर ब्लैक बॉडी एट 1500 केल्विन। अब अगर इस ग्राफ को आप देखें तो फ्लांस के जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के ओवरलैप करते हैं, उसके साथ मैच करते हैं, मींस उसका जो इक्वेशन है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। मींस यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स फेल होता है क्योंकि दोनों लॉ जो है वो ग्राफ को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गए। और मैक्स प्लांक का जो न्यू आइडिया था कि लाइट का नेचर जो है क्वांटा है, क्वांटाइज है, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करता है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। द नेक्स्ट ड्रॉबैक of classical physics is photoelectric effect. What is photoelectric effect and what are the drawbacks of classical physics? Let's discuss. When electromagnetic radiation of high enough frequency is incident on a metal surface, electrons are emitted from the surface. This phenomenon is called photoelectric effect. The emitted electrons are generally called photoelectrons. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है और मेटल है और इसमें हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन पर हम एक्सटर्नली लाइट को इंसिडेंट करें, लाइक इन दिस वन, दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट and will be emitted. Such phenomena is called photoelectric effect. Now, the failure of classical physics for photoelectric effect. The first drawback of classical physics is the intensity problem. Classically, the maximum energy of the emitted electron should increase with the intensity of incident radiation. That is, energy of ejected electron equal to half epsilon naught permittivity of free space into E square, where E is the electric field intensity amplitude. अब इक्वेशन से हमें मालूम होता है कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर दो किस्म के रेस हो, एक ये हमारे पास है वाइट लाइट और दूसरा हमारे पास है ब्लू। अब अगर आप देखें तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो ये है हमारे पास, ये वाइट लाइट जो है इसकी इंटेंसिटी हमारे पास कम है और ये जो ब्लू है इसकी इंटेंसिटी वो ज़्यादा है। इंटेंसिटी है मीन्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रेडिएशन। तो ये इक्वेशन शो करता है कि जो लाइट जो आता है जिसकी एम्पलीट्यूड ये ब्लू वाला है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है
तो ये जब आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन पर अगर इंसिडेंट हो जाएंगे तो इस ब्लू लाइट से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो वाइट लाइट जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से अगर जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो उसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल इक्वेशन। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते थे इस दोनों लाइट की वजह से दोनों की एनर्जी सेम थी, while classically the energy of the electron which emitted due to the blue light will be maximum. So here the classical physics is failed. The second drawback of classical theory is the time delay problem. Further, classically electromagnetic energy is absorbed by the electron gradually, and the electron can be ejected only when this energy becomes more than the required ejected electron from metal circuits. Therefore, there may be a time lag between the incident radiation and the emission of the electron. The lag will be longer when the intensity of radiation is decreased. But experimentally, no such time lag have ever been experimentally observed, even with radiation of very low intensity. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर हमारे पास मेटल का एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट करें दिस वन, सो क्लासिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बहुत कम टाइम बाद जो है ये यहाँ से एजेक्ट हो जाएगा। क्लासिकली मीन्स इधर कुछ टाइम जो है ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन में लेगा और फिर यहाँ से एजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो एक्सटर्नल लाइट आते हैं तो अचानक एकदम मीन्स विदाउट टाइम डिले यहाँ से एमिट होते हैं। सो अगेन क्लासिकल फिजिक्स इज फेल्ड हियर for photoelectric effect. And the last one, the drawback of classical physics, the frequency problem. According to classical mechanics or wave theory, the photoelectric effect should occur for any frequency of light, provided only that the light is intense enough to supply the energy needed to eject the photoelectron. However, according to experimental observation, for each metallic surface, a specific wave frequency required, which is called threshold frequency. For frequency less than threshold frequency, the photoelectric effect doesn't occur, and no matter how intense the illumination. याद रखिए अगेन मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक मेटल है और उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी है मिसाल के तौर पर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स फॉर एजेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब क्लासिकली कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पर हम 4 रेस को इंसिडेंट करें, 4 वेव को इंसिडेंट करें और हर एक की एनर्जी 25 इलेक्ट्रॉन हो, इट मीन्स दिस 4 वेव हैविंग एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो क्लासिकली दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब दिस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एंड विल बी emitted, but experimentally it is observed that there is no ejection of these electrons due to this external light photon. So experimentally it is observed किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से तब निकलेगा जब इस पर हम एक सिंगल रे को इंसिडेंट करें और उसकी एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या 100 से ज़्यादा हो। लेकिन क्लासिकली क्या कहता है कि मिसाल के तौर पर इस इलेक्ट्रॉन के इंजेक्शन के लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है, तो अगर हम इस पर 4 रेज को इंसिडेंट करें तो ये 4 रेज की एनर्जी जो है इंडिविजुअल की एनर्जी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 4 रेज की एनर्जी होगी हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो क्लासिकली दिस विल बी एजेक्टेड, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व that there is no ejection of electron due to these 4 rays. So these are the drawback of classical physics for photoelectric effect. The third drawback of classical mechanics is Compton effect. So what is Compton effect and why classical mechanics fail to explain Compton effect? That phenomena in which an external X-ray or gamma ray photon incident on a stationary electron then scatter with large wavelength is called Compton effect. कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक एटम है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बहुत कम है इस इंसिडेंट प्रोटॉन की एनर्जी से। सो ऑन दिस बेस दिस इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। अब कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया कि जब ये प्रोटॉन और रे इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाए तो ये स्कैटर हो जाता है, और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसकी जो वेवलेंथ है उसमें इंक्रीज आएगी
और इंक्रीज कितनी होगी, दैट इज लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस cos थीटा. लेमडा डैश इज a scatter photon wavelength, lambda is the incident photon wavelength, h is a Planck constant, m naught is stationary mass of the electron, c is velocity applied, and theta is the scattering angle. अब यहाँ पर जो है अगेन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, जब ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा और ये एक वेव को एमिट करेगा, और इस एमिटेड वेव की जो वेवलेंथ होगी इसके बराबर होगी. मींस क्लासिकली इस इनपुट लाइट की वेवलेंथ और इस आउटपुट लाइट की वेवलेंथ दोनों सेम होना चाहिए क्लासिकली. बट एक्सपेरिमेंटली there was a difference between the external incident photon wavelength and the scatter photon wavelength. So again there is a contradiction between classical result and experimental result. So it means classical mechanics failed to explain this experimental observation. The fourth drawback of classical mechanics is atomic stability. According to Bohr, electron move around the nucleus in a circular path. ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है. Now according to classical mechanics कि जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल हो और उसका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा. लेकिन बोहर ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है क्योंकि सर्कुलर पाथ में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता हो तो इसमें रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है. तो अकॉर्डिंग टू बोहर, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन हैविंग नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन बट स्टिल दीज इलेक्ट्रॉन not emitted electromagnetic radiation, while according to classical mechanics, all these electrons emitted electromagnetic radiation, and finally all these electrons reach to the nucleus and the atom will be destroyed. So it means classical mechanics fail to explain the atomic stability. The fifth drawback of classical physics is alpha emission. That process in which certain nuclei loses energy or particle to get stability is called radioactivity. मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जो अनस्टेबल है. सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अपने आप से अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस को एमिट करता है. अब याद रखिए जो मिसाल के तौर पर कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, अगर हम यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को रख दें या यहाँ पर इसके सरफेस पर अल्फा पार्टिकल को रख दें तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी इस न्यूक्लियस की वजह से वो हमारे पास होती है 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलमोस्ट. मीन्स जितनी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है उसकी जो सरफेस होती है इस सरफेस की ऑलमोस्ट एनर्जी होती है 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. लेकिन यहाँ जो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. तो क्लासिकल ये पॉसिबल नहीं है कि एक 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल एक बैरियर को क्रॉस करे और उस बैरियर की जो एनर्जी हो वो हमारे पास 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो. सो इट मीन क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन द अल्फा एमिशन. The sixth drawback of classical mechanics is hydrogen spectrum. Classical mechanics failed to explain hydrogen spectra. Classically, the hydrogen spectra should be continuous as energy of electron is continuous because there is no concept of discrete in physics. But experimentally, it was discrete. याद रखिए ये हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोजन एटम है. अगर इस एटम को हम किसी न किसी तरीके से हीट अप करें so it emit electromagnetic radiation. Now classically all these radiation having a continuous spectrum because the motion of electron is continuous classically. Its spectrum will be look like this one, but experimentally its spectra is this one. So again there is a contradiction between a classical expected spectra and observed hydrogen spectrum. So it means classical mechanics fail to explain hydrogen spectrum. The seventh drawback of classical physics is nuclear stability. Classical mechanics fail to explain
That why proton not repel each other inside the nucleus. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में लॉट ऑफ प्रोटॉन जो है एग्जिस्ट करते हैं. So classically proton repel each other, and inside the nucleus proton remain stationary or attract each other. So again here classical physics is failed, because according to classical physics, inside the nucleus proton will be repel each other, but inside the nucleus proton is attract each other, and nucleus gets stability. Means classically the nucleus stability is not possible because proton repel each other, but experimentally it is observed that nuclei are stable because proton attract each other inside the nucleus. So the attraction between proton is not explained by classical mechanics. It means classical mechanics is failed to explain nuclear stability. The last drawback of classical mechanics is the heat capacity of solids. Heat capacity of solids simply defined as the heat required to rise the temperature of a solid up to 1 degree centigrade is called heat capacity. Classical theory predicts the molar heat capacity of all substance should be same and independent of the temperature. The value of molar heat capacity for all substance and for all temperature is Cv equal to 3R. This is a classical equation derived by Dulong and Petit. And according to Dulong and Petit, the heat capacity of all solid will be same, that is Cv equal to 24.9 joule per mole per Kelvin or 25 joule per mole per Kelvin. इस क्लासिकल इक्वेशन का सिंपल मतलब ये है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए और इसके हमारे पास अमाउंट है 1 मोल. इसका इनिशियल टेम्परेचर है 600 केल्विन. अब अगर हम इंटरेस्टेड है कि इसके टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाए वो भी 1 केल्विन, मीन्स इसका टेम्परेचर हो जाए 601 केल्विन, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इक्वेशन और ड्यूलांग एंड पेटिट लॉ हमने इसको 25 जूल हीट सप्लाई करना होगा. अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है बी और इसका इनिशियल टेम्परेचर है लेट सपोज 300 केल्विन. अब अगर हम इंटरेस्टेड है कि इसका टेम्परेचर हो जाए 301 केल्विन, सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इक्वेशन और ड्यूलांग पेटिट लॉ हमने इसको सप्लाई करना है 25 जूल हीट. इसका मतलब ये है कि इस ए बी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर जो भी हो, लेकिन हमने अगर इसकी टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो हमने उसको सप्लाई करना है 25 जूल एनर्जी. दिस एग्री वेरी वेल विद द लिमिटिंग केस वैल्यू ऑफ Cv एट हाई टेम्परेचर. However, there is no indication from this classical theory of variation at the lower temperature that is shown in the figure. अब इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्लासिकल जो रिजल्ट है Cv को 25 जूल, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करता है एट हाई टेम्परेचर, बट एट लो टेम्परेचर दिस क्लासिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करता. इसको हम ग्राफ से आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इस वजह की मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है एल्यूमिनियम है, ECA2 है, ये कॉपर, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, Pb एंड जिंक, ये हमारे पास डिफरेंट सॉलिड है और इसकी अमाउंट है मिसाल के तौर पर सब के 1 मोल है. मीन जिंक पे 1 मोल, Pb भी 1 मोल, सब के सब. अब अकॉर्डिंग टू ड्यूलांग एंड पेटिट लॉ अगर हम इंटरेस्टेड है कि इस सारे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में 1 डिग्री इंक्रीज लाए, चाहे इसका इनिशियल टेम्परेचर जो भी हो, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूलांग एंड पेटिट हमने इसको सप्लाई करना है 25 जूल हीट. अब अगर इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को देखें तो मिसाल के तौर पर यहाँ से राइट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो बिल्कुल ये क्लासिकल रिजल्ट के साथ मैच करते हैं. ये बोल्ड लाइन जो है ये हमारे पास क्लासिकल रिजल्ट है और इसका मतलब ये है 25 जूल. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर हम इंटरेस्टेड है कि उसकी टेम्परेचर में 1 डिग्री इंक्रीज लाए, तो याद रखिए हमारे पास जो क्लासिकल रिजल्ट है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इनिशियल टेम्परेचर वेरी वेरी हाई हो तो हमने इसको सप्लाई करना है 25 जूल हीट.
इस तरह मिसाल के तौर पर इस सारे ऑब्जेक्ट में मिसाल के तौर पर मैं ये पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट की जो है इस पर यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल मौजूद है, इनका टेम्परेचर लो है। तो अगर हमने इसकी हीट को इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, तो हमने इसको सप्लाई करना है ऑलमोस्ट 20 और बिलो 20 जूल हीट। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रिजल्ट इसको अगर हमने इसकी टेम्परेचर में 1 डिग्री इंक्रीज लाना है तो इसको हमने अप्लाई करना है 25 जूल हीट्स। सो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो क्लासिकल रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करते हैं एट हाई टेम्परेचर, बट एज टेम्परेचर बिकम लो मीन्स this is temperature and this is CV. Means if we move from right to left, mean temperature is decreases, then the classical result deviate from the experimental result. So it is clear that classical result is matched to the experimental result at high temperature, but at low temperature classical result contradict to the experimental result. Means according to experimental result, the heat capacity is a temperature function, but according to classical physics, the heat capacity independent temperature. So it means the classical mechanics fail and scientists develop a new physics in the form of modern physics or quantum physics, which explain all the failure or drawback of classical mechanics.